Now we are going to start topic 3, section formula. Section formula is internal division of a line segment. Let A x1 by 1, B x2 by 2 be the 2 points and P xy is a point on the line segment joining A and B such that A and B is a line and P is a midpoint. Line joining. So line joining point, it will be AP ratio BP, AP ratio BP. It will be M1 ratio M2. It's M1 and it's M2. A is x1 by 1 and B is x2 by 2. P is midpoint. M1 and M2 are the ratios, so it's M1 and M2. So AP and BP, AP and PB is equals to M1 ratio M2. Then point P is said to divide the line segment AB internally in the ratio M1 ratio M2. So the coordinate points of P are, it's a formula, it's called section formula. M1 x2 plus M2 x1 whole upon M1 plus M2. M1 y2 plus M2 y1 whole upon M1 plus M2. This formula is known as section formula for internal division. Then in special case, if a point divides the line segment joining the points x1 by 1 and x2 by 2 internally in the ratio 1 ratio 1, then we get the midpoints of this line segment. Thus the coordinate of the point of the line segment, thus coordinate of midpoint P in the line segment joining the points. हमारा midpoint find करने का यहाँ पे एक formula होता है x और y के लिए. These points are x1 by 1 A and B is x2 by 2. So formula is x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. It means x bar is equals to x1 plus x2 upon 2 and y bar is equals to y1 plus y2 upon 2. So in this exercise we are using section formula and midpoint formula. Now we are going to start exercise 7.2. Exercise 7.2, question number first is find the coordinate of the point which divides the joint of -1, 7, 4 and -3 in the ratio 2 ratio 3. यहाँ हमें x1 y1 दिया, x2 y2 दिया और m1 m2 की वैल्यू भी दी है. ये जो रेशियो में दिया है 2 ratio 3, ये हमारी किसकी वैल्यू है? m1 m2 की. क्लियर? लेट x1 हो जाएगा हमारा -1, y1 हो जाएगा 7, x2 हो जाएगा हमारा 4, y2 हो जाएगा हमारा -3, m1 हो जाएगा हमारा 2 और m2 हो जाएगा हमारा 3. ठीक है, फाइंड कर लेते हैं. पहले x इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लेके चलते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2. फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर देते हैं. 2 into 4 इट विल बी 8, 3 into -1 इट विल बी -3. 2 plus 3 is 5, 5 upon 5 इट विल बी 1. y के लिए m1 by 2 प्लस m2 y1 upon m1 plus m2. 2 3s are 6, it will be -6. 3 7s are 21 plus minus 15. Upon 5 it will be 3. Thus the required coordinates of point is 1, 3. एक आया हमारा 1 और एक आ गया 3, तो required coordinates क्या हो गए हमारे 1, 3. क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड आप खुद से ट्राई कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. Question number 4 is find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by the -1, 6. Let the point is -1, 6 divides in the line segment. Then the coordinates m1, m2, coordinate of end joining of the line segment is -3, 10 and 6 and -8. So x here x is equals to, हम x क्या लेके चल सकते हैं? हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे x क्या लेके चलेंगे? x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, रेशियो फाइंड करना है हमें लाइन सेगमेंट का. ठीक है, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं m1 और m2. तो m1 हमारा एज इट इज, x2 कितना है हमारा 6 है ना, और ये हमारा 6 और m2 और ये कितना है हमारा -3 x1, m1 प्लस m2. ठीक है, हमारा एज इट इज, तो ये हो जाएगा 6 m1 -3 m2 अपॉन m1 प्लस m2. क्लियर? हम क्या करेंगे, इधर हमारा -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. -1 क्या है हमारा? लाइन जॉइंटमेंट पॉइंट है हमारा. फर्स्ट पॉइंट x वाला पॉइंट है, ये वाला है ना, तो ये क्या हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का m1 और माइनस का m2. ये हो जाएगा 6 m1 इधर का आया तो प्लस का. आधे जिसमें आया तो प्लस का, माइनस का 3 m2 उधर गया तो -3 m2
-m2 कितना हो जाएगा ये 6m1 + m1 हो जाएगा 7m1 और ये हो जाएगा हमारा 2m2। m1/m2 अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 2/7, तो हमारा हो जाएगा m1:m2 = 2:7। दस द रिक्वायर्ड रेशो इज 2:7। Question number 5. Find the ratio which the line segment joining A 1 - 5 and B -4 and 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. ठीक है, so let हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे x एक्सिस के लिए फाइंड करना है, तो हम लेट कर लेते हैं पॉइंट P। x एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा x, 0। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है x एक्सिस के x, 0 ऑफ x एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग A 1, -5, B है हमारा -4, 5 इन द रेशो ऑफ m1 m2। देन y = पहले हम लेके चलते हैं, हमारा x केस में फाइंड करना है तो हम y लेके चलते हैं। y = m1/2 + m2/1/m1 + m2। ये हो जाएगा m1 5 + m2 -5, ये 5 और ये -5, ये हमारा ठीक है, ये y1 और ये हमारा y2 अपॉन m1 + m2। ये हो जाएगा हमारा सॉल्व = 0 टेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 5m1 - 5m2। 5 से 5 हट गया हमारा, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा m1 = m2। तो हमारा कुछ नहीं बताया, मतलब रेशो कितना हो जाएगा 1:1, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो x = डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे हम मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। x1 + x2/2, x1 है हमारा 1, x2 है हमारा 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो x1 - 4/2 इट विल बी -3/2, ठीक है। तो हम क्या लेके चले थे, कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा लेके चलते हैं, हमने p फाइंड कर लिया, p की वैल्यू मिड पॉइंट p है। अगर हमारी एक लाइन है, ये हमारी, ये हमारा हो गया a पॉइंट, ये हो गया हमारा b पॉइंट, ये हो गया हमारा p, ठीक है। तो हम इसको k के फॉर्म में भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ले ले k और ये भी हम क्या सपोज कर ले k, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता k -5k 4k और 5k, ठीक है। हम इस फॉर्म में भी इसको ले सकते थे। अगर हमारा a हो जाता है यहाँ पे 1, -5, b है हमारा -4, 5, ठीक है, और ये हमारा मिड पॉइंट क्या है p। तो हमने मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर ली, p क्या हो गया हमारा -3/2 और ये हो गया 0। Thus the required ratio is 1:1। हमने रेशो फाइंड किया था, रेशो कितना है 1:1 एंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर -3/2, 0। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट अप कर दी, तो ये हो गया -3/2, 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6।